Dr. Anshli Thakur, ma'am, section head. Am I audible? Okay. So, good morning, one and all. I'll welcome respected Dr. Anshli Thakur, section head of Department of Environmental Parul University, our expert brains. I joined in this insightful webinar on disaster management. It has been rightly quoted by John Vallis that it takes a natural disaster to reveal the social loopholes barriers present in the society. Am I audible? Yes, ma'am, it's a bit lagging. I don't know it's whether the internet connection is wrong from my side or it's from you. Juhi ma'am, your voice is breaking. Am I audible? Now, yeah, ma'am, yeah, we can hear you. Am I audible? Yes, ma'am. Is my voice audible now? Ankur sir? Yes, ma'am, it's completely audible, ma'am. Ari, our focus on the topic of disaster management and its allied topic. It will include more issues to address and feel the aspects of disaster management. Hence, it gives me an immense pleasure to introduce our today's expert, Mr. Ankush Srivastava, who is currently working as research associate at Gujarat Institute of Disaster Management, Gandhinagar. He also imparted his expertise hydrometeorological activities. Apart from this, he has worked in numerical weather protection division at IMD, and he has also served his services at IIT Delhi as a scientist working for the project of avalanche forecasting model. I would kindly request Dr. Anjali Thakur to welcome Mr. Ankur and provide insights about this webinar. Handling over to Anjali ma'am. Anjali ma'am. Okay, so due to some connectivity issues, Anjali ma'am is not able to join. So I'll request Mr. Ankur sir to kindly proceed with the presentation and enlighten the students with today's topic. And I'll request all the students to kindly pay attention. And if you have any doubt, let me know us in the chat box. So at the end of the webinar, we can discuss and deliberate on the same. Over to you, sir. Oh, okay, madam. I guess my slides are visible and my voice is audible. Hello. हेलो. यस सर दिख रहा है. ओके ओके. आवाज भी आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ. Yes, yes. Okay. Thank you, Juhi madam. Yes, yes, sir. You can proceed, sir. Sure, ma'am. Sure. First of all, thank you for this generous introduction.
and I am also thankful to the administration of the university for giving me this chance. So the topic I am given to understand that the participants who are listening to this webinar or this lecture are the students and the people from academia. Generally, it's good जब ऐसे स्टूडेंट्स और एकेडमिया आते हैं ऐसे लेक्चर्स में, तो वी कैन स्ट्रेच अ बिट, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेते हैं जो जनरली मैं अपने लेक्चर्स में कवर नहीं करता. तो यस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रेंड्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं, डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क रिडक्शन क्या होता है, ये सारी टेक्नोलॉजीज होती है. दीज आर यूज्ड वेरी लूजली. कभी भी किसी इंसिडेंट को हम लोग डिजास्टर कह देते हैं, किसको कहाँ कहना है ये अभी फिक्स नहीं है, जबकि यूएन में और हमारे नेशनल लेवल पे ये सारी डेफिनेशंस एग्जैक्टली मौजूद है जिनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है. तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद कुछ साइंटिफिक जो साइंस होते हैं किसी हजार्स में, लेट से 2000 में कवर करने की कोशिश करूंगा, जो गुजरात में काफी प्रोमिनेंट है, दैट इज अर्थक्वेक्स एंड साइक्लोन. And I want to give a disclaimer before starting my lecture कि अभी ये जो फील्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इट्स वेरी इवॉल्विंग फील्ड. तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा जो आपके लेक्चर में, आपके सिलेबस में उससे थोड़ा अलग डेफिनेशन होगी. तो प्लीज अपने एग्जाम टाइम्स में वही लिखिएगा जो आपके सिलेबस में, जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है. दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज. दिस फील्ड इज कंप्लीटली इवॉल्विंग. तो कुछ चीजें अभी तक आपकी बुक्स तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो अभी उस पर हम लोग बातें करेंगे. वो क्या है वो देखते हैं. जैसे अभी मैडम ने बात की कि देयर आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. Means we in scientific community as of now, in disaster management professional community, we don't use the word natural disaster. In fact, we say that there are no natural disasters. There is only man-made, or to be gender sensitive, we say that they are human-induced disaster. क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में जान करेंगे. क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि डिजास्टर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड मैन-मेड. बट हम इस पे अभी हम लोग कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि वी डोंट से दैट दे आर नेचुरल डिजास्टर. बट लेकिन अगर आपके सिलेबस में है तो आप वही लिखेंगे जो आपकी बुक्स में है. बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से वी विल टॉक अबाउट क्यों मैंने ऐसा कहा. तो स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन कि what are the disasters. When we are talking about disaster, what is the picture that is built in our mind? Generally we associate disasters with loss of life, economic loss or environmental degradation. So whenever we talk about disaster, तो हम लोग यही कहेंगे कि there would be certain loss of life, कुछ इसमें economic loss होगा या environmental degradation होगा. तो now the ambiguity यहाँ पे ये arise होती है कि all the events which जहाँ पे loss of life and there is economic loss and the environmental degradation, can we call them as a disaster? Every event जिसमें ये सब होता है उसे डिजास्टर कहेंगे. और देयर इज सर्टेन नंबर फिक्स कि इतने लोग मरेंगे या फिर इतना इकोनॉमिक लॉस होगा, तब उसे हम डिजास्टर कहेंगे. तो उसको देखते हैं. उससे पहले एक क्वेश्चन पता करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा हमने यहाँ बताया कि डिजास्टर में जो हमारी एक कॉमन जो प्रैक्टिस है, the knowledge we term that disaster, we always associate with something जिसमें लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होता है. बट उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा ऐसा नेचुरल हजार्ड है जिसके कारण सबसे ज्यादा अननेचुरल डेथ्स होती हैं इंडिया में. कुछ लोग बोलेंगे अर्थक्वेक होगा, कुछ लोग बोलेंगे फ्लड्स होगा, कुछ लोग बोलेंगे साइक्लोन. लेकिन सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं इंडिया में वो होती है लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की वजह से. उसमें ऑन एन एवरेज हर साल 2000 लोग मारे जाते हैं. लेकिन और अगर मैं बात करूं 1967 से 2020 की, ऑफ कोर्स मैंने 2020 तक का डेटा लिया है क्योंकि अगर उसके बाद का लेता तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव बायस आ जाता टुवर्ड्स ये बायोलॉजिकल, क्योंकि अभी कोविड के चक्कर में काफी डेथ्स हुई हैं. तो that why I have taken data up to 2020. So if we take about the number of fatalities due to any natural hazards in India since 1967, so there are around 33% of those deaths have been caused by lightning. And the
state of the situation is at the moment is कि हम lightning को government of India and there are most of the states they have not notified lightning as a disaster. So it's a bit contradictory. जो हमारी general understanding है कि disasters are something where there's huge loss of life, huge loss of economic property, and India में जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, that is lightning, it is not considered to be a disaster by government of India. So disaster क्या होता है? We need to understand. So जब whenever we have these kinds of confusion, we go back. In fact, अगर there's a National Disaster Management Plan 2019, it lists around 20 different hazards. इसमें भी lightning नहीं आता है. So whenever we have this confusion that किसको disaster कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, we go back to the statutes, the laws, जो acts बने हुए हैं, उसमें क्या definition दी गई है, हम उस पे जाते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं. तो we all know that गुजरात में सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ था, डिजास्टर इवेंट हुआ था, वो 2001 का भुज का अर्थक्वेक हुआ था. एंड उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दे इनेक्टेड गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003, एंड इन दैट पर्टिकुलर एक्ट दे हैव गिवन अ डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर्स व्हिच सेज दैट इट इज एन एक्चुअल और इमिनेंट इवेंट व्हिच कॉजेज और थ्रेटन्स टू कॉज any of the following, what we have discussed before, ki widespread loss of damage to the property, economic loss, widespread loss of human life or injury, social loss, and damage to the degradation. That's ये तो हमने पहले डिस्कस किया था, बट उन्होंने एक क्लॉज और ऐड कर दिया, and any of such effects specified in sub clause 1 to 3 is such that it's beyond the capacity of the affected community. मतलब उसमें economic loss होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, बट उसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया कि इट्स बियॉन्ड द अफेक्टेड कैपेसिटी ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी. नाउ जो ये रेड में जो अंडरलाइन वर्ड है, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से अपने शहर में कहीं एक जगह किसी एक ब्लॉक में किसी एक कस्बे में आग लग जाती है, लेकिन वहाँ की जो फायर सर्विसेज थी वो काफी चाक चौबंद थी, दे वर वेरी एफिशिएंट, और वो आग पर काबू पा जाते हैं. तो और अगले दिन न्यूज़पेपर में ये इंफॉर्मेशन आती है कि 10 लोग जख्मी हुए एंड 2 आर क्रिटिकल आफ्टर दिस फायर इंसिडेंट. तो कैन वी कॉल दिस इवेंट समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी? ऑफ कोर्स नो. दिस इज समथिंग, ऐसा इवेंट हुआ, बट आवर कैपेसिटी वाज सच, कैपेसिटी इन दिस फॉर्म वाज द फायर ब्रिगेड सर्विसेज, द प्रोएक्टिवनेस ऑफ द फायर ब्रिगेड सर्विसेज. तो अभी हैड दिस कैपेसिटी जिसमें लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, लेकिन इकोनॉमिक लॉस हुआ, इंजरी हुई, बट this cannot be considered something which is beyond the capacity. तो दिस इवेंट को हम लोग डिजास्टर नहीं कहेंगे. इसके अलावा कैन वी कंसिडर द 2001 भुज earthquake as a disaster? Of course, this event can be called as something which is beyond the capacity of the community, because all the infrastructures, all जो अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी वो सब तबाह हो गई थी, and the situation was really beyond the capacity of individual and the community. So now इसमें जो हमने बताने की कोशिश की थी कि so now we get a definition of disaster कि any event जिसमें loss of life हो, property damage हो, and there is environmental degradation, but it should be beyond the capacity. And तो capacity को define करने के लिए हमने ये बता दिया example कि capacity मतलब हो सकता है आपके पास resources हो, आपके पास management practices अच्छी हो, आपके पास awareness हो, और तो उसको कैपेसिटी कहेंगे. तो इस केस में ये डिजास्टर नहीं बना, और इस केस में ये डिजास्टर बन गया. बट डोंट यू थिंक अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, इट्स बिट एम्बिगुअस कि कब हम कहेंगे कि कोई इवेंट अपनी कैपेसिटी में है, कब कहेंगे कोई अपनी इवेंट कैपेसिटी के बाहर है. इसके लिए 2 मिलियन डॉलर क्वेश्चंस होते हैं कि विच इवेंट्स विल बी कॉल्ड एज डिजास्टर एंड व्हाई ओनली सर्टेन इवेंट्स आर कॉल्ड डिजास्टर. फर्स्ट तुम्हें पहला क्वेश्चन मैं समझा दूं, उसमें क्या कौन से इवेंट्स होते हैं जिसे हम डिजास्टर कहते हैं. तो डिजास्टर होने की क्या कैटेगरीज होती हैं, कुछ एक नंबर ऑफ हम लोग लॉस बता देते हैं कि इतने लोग, इतने हजार लोग मरेंगे या इतने लाख लोग मरेंगे और इतने मिलियन या बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, तब उसे हम डिजास्टर कहेंगे. पहला सवाल ये. दूसरा सवाल ये होता है कुछ ही इवेंट्स होते हैं उन्हें डिजास्टर क्यों कहते हैं, सारे इवेंट्स को हम लोग डिजास्टर क्यों नहीं कहते. अगर आपको याद होगा तो पिछले ही साल राजकोट में अराउंड 4 या 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उसे तो हमने डिजास्टर नहीं कहा, लेकिन भुज में जो अर्थक्वेक आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, उसे डिजास्टर कहा. तो क्या कोई एक नंबर असाइंड है जो बताता है कि इतने पार हो जाएगा तब हम डिजास्टर कहेंगे? तो इंडिया में वी डोंट हैव एनी सच न्यूमेरिकल फिगर्स
it all depends on the government at central level पे central government, state level पे state government और district level पे collector. They are responsible persons, they are responsible institutes जो declare करते हैं किसी event को disaster. In Western countries और बाकी East में भी कुछ countries ऐसी हैं where they have put a numerical figure to that कि अगर इतना नुकसान होगा या फिर इतने डेथ्स होंगी तो उसे हम डिजास्टर कहेंगे. But that is not in the case in our country. In our country, any event which is notified by this government resolution GR, जो कि आपके 3 रेजोल्यूशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तभी उस इवेंट को डिजास्टर हम लोग कहते हैं. तो पहला डिजास्टर डिक्लेरेशन इंडिया में कैसे होता है? गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है दैट्स कि इवेंट डिजास्टर है कि नहीं डिजास्टर है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें द डेट दी हुई है 14 मार्च 2020. ये कोविड के लिए आया था कि वेदर we should consider COVID as a disaster or not. So please read something which is underlined in red. It is said that we can read the entire paragraph. The central government, keeping in view the spread of COVID-19 virus in India and the declaration of COVID-19 as a pandemic by World Health Organization by the way of one special time suspension, has decided to treat it as a notified disaster. So the government of India, that's Ministry of Home Affairs, which is responsible for disaster management in our country, has issued a notification that we are going to treat COVID-19 as a disaster. इसके बाद ही COVID-19 को डिजास्टर किया गया. लेकिन किसी इवेंट को डिजास्टर क्यों किया गया? Let's जो दूसरा रेड लाइन है उसमें पढ़ें. For the purpose of providing assistance under SDR. तो किसी भी इवेंट को हम डिजास्टर तभी घोषित करते हैं या गवर्नमेंट डिजास्टर उसी घोषित करती है कि उससे कंपनसेशन असिस्टेंस दिया जाना होता है जो लोग इंजर्ड हो गए होते हैं या फिर जो लोग जिनकी मौत हो जाती है. तो जिनको अगर हमें कुछ मदद पहुंचानी है, कुछ असिस्टेंस पहुंचाना है, अगर सरकार ऐसा सोचती है तभी उस इवेंट को डिजास्टर घोषित करती है, अन्यथा नहीं करती. तो कोविड-19 के केस में 14 मार्च 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कोविड-19 डिजास्टर है. और उसके बाद से इसमें ये कहा गया था कि असिस्टेंस दिया जाएगा. ये जो असिस्टेंस होता है उसे हम लोग एक्स ग्रेशिया कहते हैं एंड वो नॉर्मल केस में ये 4 लाख रुपए दिए जाते हैं इन केस ऑफ एनी फैटेलिटीज. लेकिन कोविड-19 के केस में अगर आप दूसरा जो बीच वाला नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया कि फर्स्ट केस में तो उन्होंने कह दिया कि डिजास्टर है, लेकिन सेकंड केस में उन्हें लगा कि द नंबर ऑफ कोविड फैटेलिटीज एंड कोविड पेशेंट्स है वो इतना ज्यादा हो गया है कि इफ वी आर गोइंग टू गिव 4 लाख टू ऑल द जो फैटेलिटी के इंसिडेंट होंगे तो हमारे पास जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है वो खत्म हो जाएगा. तो उन्होंने सेकेंड नोटिफिकेशन इशू किया सेम दिन 14 मार्च को. उसमें लिखा हुआ है डियर सर मैडम आई एम डायरेक्टेड टू रिफर मिनिस्ट्री, ये जो पहले वाले को रिफर कर रहा है, डेटेड 14 मार्च अबव एंड मेंशन सब्जेक्ट अलोंग विद पार्शियली मॉडिफाइड. तो वर्ड जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है उसमें उन्होंने पहले वाले को पार्शियली मॉडिफाइड कर दिया. और क्या मॉडिफिकेशन किया वो नीचे लिखा हुआ है कि उसमें कुछ केसेस में 25% ही एसडीआरएफ का होगा और कुछ केसेस में उन्हें सिर्फ 10% का एसडीआरएफ का पैसा खर्च कर. एसडीआरएफ मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जिसमें असिस्टेंस दी जाती है. तो फर्स्ट केस में जो नोटिफिकेशन आई उसमें ये कहा गया कि हम कोविड-19 को डिजास्टर मानते हैं एंड वी विल बी, उसके बाद से हम इसमें कंपनसेशन दे सकते हैं जो कि नॉर्मल केस में अगर कोई फैटेलिटी होती है तो 4 लाख रुपया होता है. सेकेंड केस में ये बोला, उनको पता लगा कि जब इतना ज्यादा जो लोगों की मौत हो रही है कोविड-19 में तो सबको अगर हम लोग कंपनसेशन देंगे तो देयर वुड बी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फंड इन स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो होता है. तो उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, उन्होंने एक अपर लिमिट लगा दी कि कुछ केसेस में 25% और कुछ केसेस में 10%. फिर हम थर्ड वाले पे आए बट इसका संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यू कैन नॉट लिमिट द रिस्पांस फंड जो होता है बिकॉज ड्यू टू by treating COVID-19 as a special case. So आप 4 लाख मत दीजिए बट यू कम आउट विद एन अमाउंट कि वो जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया जा सके. तो 25 सितंबर 2021 को एक दूसरा जीआर आया, इसमें सब थर्ड वाला है, उसमें एक्स ग्रेशिया पेमेंट को कहा गया कि वो हम लोग 4 लाख ना देके 50,000 देंगे. एंड दूसरा जो लाइन लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन दिस आइटम वुड बी इनकर्ड फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड. तो फर्स्ट केस में ये कहा गया कि हम उसको डिजास्टर
डिजास्टर मानेंगे तो उन्हें 4 लाख रुपए देना पड़ेगा। सेकंड, उसमें नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, 4 लाख ना देके हमने एक लिमिट लगा दी है। फिर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट कैन नॉट डू लाइक दिस, वो डिसाइड कर दे कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, कब देना है कि नहीं देना है, तो यू कम अप विद एन अमाउंट जिसमें आप कुछ दे सकें। तो उन्होंने दे केम अप विद 50,000 इन केस ऑफ फर्टिलिटीज, और ये अभी का जजमेंट यही है। तो नाउ वी अंडरस्टैंड इट कि डिजास्टर डिक्लेरेशन होता है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर। So this is how disasters are declared in our country, and we will call any event to be a disaster जब उसे गवर्नमेंट डिजास्टर नोटिफाई करेंगी, अन्यथा उसे हम डिजास्टर नहीं कहेंगे। और जो SDRF की बात की, वो हमारे फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन हुआ था, उसमें उन्होंने एक, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, 1,60,153 करोड़ को दिया गया था। ये 21 से लेकर 26 तक के ये अमाउंट है। तो 15th फाइनेंस कमीशन में भी ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के का प्रोविजंस रहता है। और लाइटनिंग को हम लोग डिजास्टर क्यों नहीं मानते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है, उस पर उन्होंने कहा था, लिखा हुआ है, डिजास्टर्स कवर्ड अंडर SDRF, साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, अवलांचे, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव। इसमें कोविड-19 में नहीं था, कोविड-19 जैसे मैंने पिछली नोटिफिकेशन में बताया कि तो मार्च 2020 में इंक्लूड कर दिया गया। तो लाइटनिंग हैज नॉट बीन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ डिजास्टर, तो उसे इसलिए डिजास्टर नहीं माना जाता है, और दैट्स व्हाई दे आर नॉट पेड कंपनसेशन सारे स्टेट्स में। बट स्टेट्स ऑल्सो हैव दिस पावर कि वो डिसाइड कर सकें किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को वो डिजास्टर कहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो द सेंटर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बता सके कि कौन से इवेंट डिजास्टर होंगे। उन्होंने फिक्स कर दिए हैं ये 13 इवेंट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, जो भी मैंने डिस्कस किया। लेकिन इसके अलावा हमारे स्टेट्स के पास भी पावर होती है कि वो किसी एक पर्टिकुलर लोकल इवेंट को डिजास्टर घोषित कर सकते हैं। तो केरला जैसे स्टेट हुए, उड़ीसा, बिहार, इन स्टेट्स ने लाइटनिंग को डिजास्टर किया हुआ है, लेकिन नेशनल लेवल पे और गुजरात स्टेट जो हमारा स्टेट है, यहाँ पे लाइटनिंग को डिजास्टर नोटिफाई नहीं किया गया है। Then we come to another term, disaster management. जब वर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट आता है तो इसमें वी थिंक ऑल द एक्टिविटीज विच आर गोइंग टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, वो डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस वर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअली मीन्स। तो उसका लिटरल मीनिंग लेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग डिजास्टर। So how you can manage the disaster? Managing disaster means response and relief, reconstruction and rehabilitation. Once a disaster, एक disaster हो गया है, how you are going to manage this? You will rescue the people, evacuate कराएंगे, उन्हें first aid देंगे जो response में आता है। फिर कुछ दिन बाद हम reconstruct कराएंगे जिनकी building, let's say in earthquake में किसी के घर तबाह हो गए हैं तो उनके building को reconstruct करेंगे और उन्हें वापस rehabilitate करेंगे। This is the actual meaning of डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर रिस्पांस मींस आप इवैक्यूएट करा रहे हैं, रेस्क्यू करा रहे हैं, सेकंड रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं आप चीजों को, एंड फाइनली रिहैबिलिटेशन कराना। बट हम ये जानने की कोशिश करें कि डिजास्टर के बाद क्या होता है। अगर लेट्स से अगर अभी यहाँ पे एक अर्थक्वेक आ जाएगा तो क्या दिखेगा, तो सबका एक जनरल परसेप्शन रहता है कि अगर कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, दिस वुड बी द सीन। जो फर्स्ट फोटोग्राफ्स में यहाँ नजर आ रहा है, दिस वुड बी द सीन। अगर यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, देयर वुड बी बिल्डिंग्स की काफी लॉस होगा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में देयर वुड बी सम डेथ्स, देयर वुड बी सम इंजरीज। यही जनरली लोगों का परसेप्शन होता है। बट इन केस ऑफ डिजास्टर सबसे बड़ा जो खतरा होता है करेंटली, वो होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। If उसके जो figures होते हैं, if you try to Google it, I cannot say on this public platform right now, this is horrendous. After every particular disaster, जैसे earthquake होता है, अभी नेपाल में 2015 में earthquake आया था, there was thousands of people, especially girls, young girls, they were trafficked. और अभी वो उनकी वापस वो आ रहे हैं तो NGO उन्हें rehabilitate करा रहा है, and वो
किसी मतलब प्रोस्टिट्यूशन रिंग में फंस जाती हैं, या फिर उन्हें चाइल्ड लेबर में लगा दिया जाता है। तो सबसे बड़ा खतरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होता है आफ्टर एनी डिजास्टर। ये भी पाया गया है कि डिजास्टर के बाद ये डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है। इन केस ऑफ 2004 की जो सुनामी आई थी, उसमें कहा गया था कि सुनामी आने के बाद 40% इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस हो गया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो फिशरमैन थे उनकी डेथ्स हो गई थी इन सुनामी, और जो लोग बचे थे उनके पास कोई जीवन निर्वाह का, सर्वाइवल का कोई ऑक्यूपेशन नहीं बचा था। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था। और ये भी कहा जाता है जो फीमेल्स की डेथ्स होती है कंपेयर टू मेल इन केस ऑफ एनी डिजास्टर इज 1:4, यानी 4 टाइम्स फीमेल्स ज्यादा फेटेलिटीज होती है देन कंपेयर्स टू मेल। इसका रीजन ढूंढने की कोशिश किया गया कि वीमेंस आर कंसिडर्ड टू बी, उन्हें कहा जाता है कि आप घर की देखभाल करिए, तो वो घर छोड़ने को तैयार नहीं होती हैं अपने बूढ़े अपने बच्चों को छोड़ के जाने के लिए। सेकेंड थिंग, जो पर्दा सिस्टम होता है हमारे सोसाइटी में, दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रेटर नंबर ऑफ डेथ्स अमंग फीमेल कंपेयर टू द मेल्स। इसके अलावा जो आफ्टर मार्थ होता है इन केस ऑफ डिजास्टर, लूट मार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पीपल आपदा में अवसर मौका ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी सी इन televisions and news reports that after any such calamitical event has occurred, people have started looting the shops and the crime rate increases. So this is something which happens after disaster, not only the buildings social damage, social loss or economic loss होता है, these are also जो losses होते हैं disaster के बारे में। So don't you think disaster management is a reactive approach? Means we are doing something, we are trying to manage a disaster after the loss has incurred. Means like when जब हम लोग rescue करते हैं, response करते हैं, rehabilitate करते हैं, we are doing something which is after the event, after the loss जो हो चुका है, जब loss, उसके बाद ही बात करते हैं। It's a reactive approach. क्यों आपको नहीं लगता क्या हम proactive बन सकते हैं? कैन वी डू समथिंग जिससे ये लॉस रोका जा सके, किसी इवेंट को डिजास्टर बनने से रोका जा सके? कैन वी डू इट? लेट्स सी नाउ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबिनार इज डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड बट इफ वी जो साइंटिफिक डेफिनेशन देखी जाए डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसका मतलब वही होता है कि डिजास्टर के बाद की चीजें, मीन्स रिएक्टिव अप्रोच। यू आर गिविंग अ रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर इवेंट। लॉस होने के बाद, डिजास्टर आने के बाद जो किया जाता है उसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, जो कि रिएक्टिव है। बट ये उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि जो लॉस ऑलरेडी हो गया है उसमें मैंने बताया कि डिजास्टर होने के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ जाती है और भी तरीके के लॉसेस होते हैं। तो वी नीड टू बी प्रोएक्टिव एंड माइंड यू, वी आर वेरी गुड इन डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब जो डिजास्टर रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन में हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी के जो स्टेट्स हैं, दे आर रियली वेरी गुड इन डिजास्टर मैनेजमेंट। हमारे सारे एसओपी बने हुए हैं। अगर आप 2001 के भुज का अर्थक्वेक लीजिएगा, अभी जाके आप देखे जाएंगे भचाऊ या कच्छ में जो बिल्डिंग्स पहले तबाह हो गई थी, कुछ उन्होंने दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है कि अब दोबारा वो वैसा अर्थक्वेक आएगा तो वहां पे कोई नुकसान नहीं होगा। बट हम तब जागे जब नुकसान हो गया था। मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट में हम बढ़िया हैं। 2013 के एक केस का अगर केदारनाथ की मैं बात करूं, तो वहां पे इतना ज्यादा डोनेशन पहुंचा, इतना ज्यादा लोगों ने वहां पे पैसे कंट्रीब्यूट किए कि स्टेट गवर्नमेंट को मना करना पड़ा कि प्लीज हमें अब आप ये डोनेशन ना दें, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस ना दें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा असिस्टेंस आ चुका है। लेकिन ये आप ध्यान दीजिए कि ये सब तब हुआ जब लॉस ऑलरेडी हो चुका था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑल द पार्ट, all the activities which is done after any particular after any disaster. So it's a reactive approach which is not preferable, and because इस पे ध्यान देना उतना जरूरी है, but we are already excelled it. जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2001 के भुज अर्थक्वेक में एंड 2013 के केदारनाथ फ्लड्स में काफी अच्छा डिजास्टर मैनेज किया गया था। तो व्हाट इज नोन एज प्रोएक्टिव पार्ट? रिएक्टिव पार्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। व्हाट इज द प्रोएक्टिव पार्ट? उसको समझने के लिए हम लोग केदारनाथ ट्रेजेडी को समझते हैं। दिस इज द सीनिक व्यू ऑफ केदारनाथ। यहाँ पे अगर मैं अब मेरा माउस का पॉइंटर देखेगा, दिस इज द श्राइन, दिस इज द केदारनाथ टेम्पल। ये ऊपर यहाँ पे एक चोराबारी ग्लेशियर था। चोराबारी ग्लेशियर
जब ग्लेशियर मूव करते हुए आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि whenever ग्लेशियर मूव्स, जब वो मेल्ट हो जाता है, इट फॉर्म्स ग्लेशियल लेक्स. यहाँ पे ग्लेशियल लेक बन जाती है. इट मींस अ लेक व्हिच हैज बीन सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस. सो समटाइम्स कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं आइदर ड्यू टू लैंडस्लाइड्स और एक्सेस रेन कि वो लेक में पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि लेक फट जाता है. इट्स बिट एब्सर्ड कि टू हियर दैट लेक फटने का मतलब क्या हुआ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक ग्लेशियर मूव किया, उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, ग्लेशियर का पानी मेल्ट हो गया, चारों तरफ रिजेस हैं पहाड़ों के, बीच में पानी है. अब उस पानी में लैंडस्लाइड की वजह से पानी डिस्प्लेस होगा या फिर वहां पे इतना ज्यादा बारिश हो जाए कि वो लेक ओवरफ्लो करने लगे और जो उसकी बाउंड्रीज जो बनी हुई है माउंटेन से वो फट जाए. तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, ग्लॉफ. यही इंसिडेंट हुआ था केदारनाथ में. दिस इज द शॉर्ट क्लिप फ्रॉम द केदारनाथ मूवी जो कि बेटर आइडिया देगा हमें. You can see that this is the shrine. ऊपर से यहाँ पे ग्लेशियर लेक था. ग्लेशियर लेक में पानी उस दिन बहुत ज्यादा पानी बरसात हुई थी तो पानी ओवरफ्लो करने लगा. तो यहाँ पे ये जो चोराबारी ग्लेशियर था, वो चोराबारी जो लेक बना हुआ था उसकी वो वहां से ग्लॉफ इंसिडेंट हुआ था, वो लेक फट गया था और पानी ओवरफ्लो कर गया था. So this is I visited that shrine 2017 में मैंने विजिट किया था. You can see जो valley sands on the left hand side, it's around 200 meters deep and the erosion, the पानी यहाँ तक भर गया था. So this incident is very close to me and these are the snapshots which I took on the day when I went there. So why I discuss this particular topic, that could this tragedy be averted? क्या हम केदारनाथ इंसिडेंट को क्या उनको रोका जा सकता था? क्या इतने बड़े इंसिडेंट को, जो ऐसा इंसिडेंट जो इतने बड़े स्केल पे हो रहा है, क्या उसे रोका जा सकता था? So I went on and मैंने कुछ स्टडी किया. तो ये इंसिडेंट हुआ था इन जून 2013. 2004 के 2 अगस्त में दैनिक जागरण जो पॉपुलर न्यूज़पेपर है इन नॉर्दर्न इंडिया, उसमें ऑलरेडी इसके इस खतरे के बारे में चेताया जा चुका था. 2004 मींस 6 + 3 9 years before. 9 years before ये बताया जा चुका था कि केदारनाथ खतरे में है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ग्लॉफ के इंसिडेंट हो सकते हैं और पूरे केदारनाथ के आसपास तबाही मच सकती है. 9 years इज अ वेरी बिग टाइम. तो अब इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने काफी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं. अगर आप चाहेंगे अब तो बायोमेट्रिक स्कैन्स होते हैं एंड उन्हें हर समय पता रहता है कि ऊपर कितने लोग हैं. देयर आर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियां वहां पे लगाई रखी हैं. कुछ एक पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं जहां पे आपको वाईफाई सिग्नल्स भी मिल सकते हैं. लेकिन ये चीज अब हुई है डिजास्टर के बाद. मीन्स डिजास्टर को मैनेज किया हमने, डिजास्टर को रोका जा सकता था. इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से थी. अगर हम प्रोएक्टिव अपनी अप्रोच में होते, we could have stopped this tragedy, we could have reduced. अगर हम रोक नहीं सकते थे, we could have reduced. But this does not, ये होता नहीं है इन प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा जनरल आइडिया यही होता है कि कोई इवेंट हो जाने तो उसके बाद देखा जाएगा, पहले से करके क्या फायदा. तो ये रिएक्टिवनेस जो होती है वो ऑलरेडी हमारे माइंडसेट में है, जिसको करने की कोशिश करें. वी नीड टू बिकम प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव मीन्स कि ऐसी जो इंफॉर्मेशन, ऐसी जो रिसर्चेस हमारे एकेडमिया के लोग आज जुड़े हुए हैं, ऐसी वो रिसर्चेस वो लोग भी करते होंगे जिसमें वो कोई रिस्क को पहले से ही पहचान जाते हैं. लेकिन जरूरत है कि उन रिस्क को पहचान के उस पर एक्शन लेने की. 9 साल पहले ये रिस्क हमें पता था लेकिन हमने इस पर कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि इतना ज्यादा नुकसान हुआ. तो वी आर हियर मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब डिजास्टर रिस्पॉन्स और रिकंस्ट्रक्शन, और हमें जाना है यहाँ पे रिस्क प्रिवेंशन और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट. मतलब हम लोग रिएक्टिव अप्रोच है. हम लोग राइट नाउ वी आर
रिएक्टिव अप्रोच फॉलो हो रही है इस पर्टिकुलर फील्ड में, बट वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने को क्या कहते हैं? प्रोएक्टिव होना मतलब रिस्क, मैंने बताया कि रिस्क को पहचानना और रिस्क को कम करना। तो डिजास्टर के रिस्क को पहचानना और डिजास्टर के रिस्क को कम करना, और उन जो एक्टिविटीज जो डिजास्टर के रिस्क को कम करती है उसे हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं। मतलब अगर आपको घर बनाना है किसी एक फ्लड प्रोन एरिया में, किसी एक नदी के किनारे आपको घर बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? उसको घर बनाने से पहले रिस्क को एनालाइज करेंगे कि क्या वहां पे फ्लड का खतरा है जिससे मेरा घर को नुकसान हो सकता है। तो रिस्क को पहचाने और उसी हिसाब से काम करें। काम क्या करेंगे इस केस में? अगर आपको लगता है फ्लड की वजह से नुकसान हो सकता है तो आप एम्बैंकमेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे या फिर अपने घर का स्ट्रक्चर वैसा बनाएंगे कि वो फ्लड प्रूफ हो सके। So the activity which are done before an event, before a disaster, उसे हम disaster risk reduction कहते हैं, which is the proactive part. तो reactive part हुआ disaster management, proactive part हुआ disaster risk reduction. Now another $1 million questions come कि क्या better है इसमें, disaster management और disaster risk reduction? तो जो अभी तक हम लोग ने डिस्कशन किया है, whatever we have discussed till now, people will say that disaster risk reduction is better, कि किसी इवेंट के होने से पहले ही हम उसे कर दें। ऑब्वियसली इट्स अ गुड अप्रोच, हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑलरेडी वी आर डूइंग, मतलब वी आर एक्सेलिंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करने की कोशिश है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को हमें कंप्लीट इग्नोर करना है। एक केस स्टडी लेते हैं कि 2001 के भुज का अर्थक्वेक लें और 2011 के जापान के अर्थक्वेक लें। तो भुज के अर्थक्वेक में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जापान के केस में 9.1 मैग्नीट्यूड का। हमें पता है कि भुज के अर्थक्वेक में क्या हुआ था, लेकिन 9.1 का जो मैग्नीट्यूड हुआ था अर्थक्वेक का, उसमें ये बिल्डिंग्स, आपको लग रहा होगा ये GIF मैंने दी है, इसमें बिल्डिंग्स हिल रही थी एक्चुअली जैसा इसमें दिखा रहा था। इतने हाई स्काई स्क्रैपर्स, इतने हाई राइज बिल्डिंग्स हिल रही थी ड्यू टू ग्राउंड शेकिंग, बट अर्थक्वेक की वजह से नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ कैसे? अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई, सुनामी का पानी न्यूक्लियर रिएक्टर में घुस गया, न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से वहां पे मेल्ट डाउन हुआ, रेडिएशन बाहर फैली, रेडिएशन की वजह से लोगों की जान गई। तो जो रिस्क रिडक्शन करके, अर्थक्वेक का रिस्क रिडक्शन करके उन्होंने अर्थक्वेक से तो बच लिया, लेकिन कुछ रिस्क जो होते हैं वो आप कैटर नहीं कर सकते। रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट whether you can perceive it or not। ये हमारा वो टेंस टू इंफिनिटी जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो वाला केस हो जाता है कि रिस्क कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। जैसे जापान के केस में उन्होंने रिस्क रिडक्शन पे काम किया, डिजास्टर अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन पे काम किया, उन्होंने स्ट्रक्चर जो स्टेबिलिटी थी वो पाली, अर्थक्वेक से लोगों को बचा लिया, बट दे न्यू द सुनामी रिस्क। लेकिन वो सुनामी रिस्क उनको जो उन्होंने मेजर्स, जो स्टैंडर्ड्स रखे थे सुनामी के रिस्क, उसको पार कर गया और उनको फिर रेडिएशन हुआ। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत भी आती है। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की वजह से उन्होंने अर्थक्वेक से बचा, और लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत भी पड़ी इन केस ऑफ सुनामी। तो रिस्क एग्जिस्ट whether you can perceive it or not. So we cannot say that disaster risk reduction is only good. Disaster management is also is necessary, जहाँ पे हम risk reduction हमारे पूरी तरीके से काम नहीं आ पाएगा। In fact, we have a terminology where we say that residual risk. Residual risk का मतलब ये होता है कि जो रिस्क आप कंप्लीट करने के बाद, रिस्क रिडक्शन एक्टिविटीज करने के बाद भी जो रिस्क बच जाते हैं और बचते ही हैं, तो उन्हें हम रेसिडुअल रिस्क करते हैं। उन रेसिडुअल रिस्क की वजह से जो डिजास्टर होगा उसको कैटर करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का होना जरूरी है। तो विच वन इज बेटर? दोनों ही जरूरी हैं। वी कैन नॉट से कि कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस बेटर है। तो जो इन दोनों एक्टिविटीज के गैमेट को हम लोग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो disaster risk management consists of proactive part, which is disaster risk reduction, as well as disaster reactive part, which is disaster management. So now this is our fourth terminology. First terminology was disaster. Disaster का मतलब होगा where there is loss of life, injury, economic loss, and environmental degradation such that it is beyond the capacity. That was the first definition we studied. Then we studied कि disaster कौन declare करता है? The government through particular public notification
डिक्लेयर करती है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को डिजास्टर। देन वी केम अक्रॉस द टर्मिनोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट इज द रिएक्टिव पार्ट वेयर वी ट्राई टू मैनेज द डिजास्टर। मैनेज डिजास्टर मीन्स कोई इवेंट हो गया है, उसके बाद क्या करना है उसको करते हैं, मीन्स रेस्क्यू ऑपरेशंस, प्रिवेंशन, इवैक्यूएशन, वो प्रिवेंशन, सॉरी नॉट प्रिवेंशन, इवैक्यूएशन, रेस्क्यू कराना, फिर रिकंस्ट्रक्शन कराना, रिहैबिलिटेशन कराना, मीन्स ऑल द एक्टिविटीज आफ्टर द डिजास्टर, दैट इज रिएक्टिव पार्ट व्हिच कम्स इनटू डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ा कि डिजास्टर आने के पहले जो करते हैं उसे हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करते हैं, व्हिच इज द प्रोएक्टिव पार्ट एंड द कंप्लीट गैमेट ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, दैट मीन्स द रिएक्टिव पार्ट एज वेल एज प्रोएक्टिव पार्ट, उसको टुगेदर हमने अम्ब्रेला डेफिनेट टर्म यूज करते हैं व्हिच इज नोन एज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। सो व्हेनेवर अगर फ्यूचर में कोई हम वेबिनार करेंगे ऐसा, तो वी विल से इट्स नॉट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इट्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। सो डिजास्टर रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे हम कि डिजास्टर रिस्क को हमने कह दिया कि डिजास्टर रिस्क को कम करना है, लेकिन डिजास्टर रिस्क को समझना ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर रिस्क का मतलब होता है, रिस्क ऑफ अ डिजास्टर मीन्स रिस्क ऑफ लाइफ लॉस, रिस्क ऑफ डैमेज, रिस्क ऑफ इकोनॉमिक लॉस, और वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज और इकोनॉमिक लॉस। तो रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क को प्रोबेबिलिटी यूं नहीं, लेट्स से अगर हम यहाँ पे अगर कोई एक इवेंट आ जाता है तो जो लॉस होगा उसे हम लोग अभी के लिए रिस्क है, इवेंट के बाद वो डिजास्टर बन जाएगा, डिजास्टर लॉस हो जाएगा, लेकिन डिजास्टर आने से पहले वो रिस्क है, मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इन केस ऑफ अ डिजास्टर इज अ डिजास्टर रिस्क। और ये लाइफ लॉस, डैमेज और इकोनॉमिक लॉस है, उसे ही तो हम लोग डिजास्टर कहते हैं। तो डिजास्टर ऑफ रिस्क मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर मतलब लॉस, सीधा मतलब, तो लॉस होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो रिस्क कहते हैं। और लॉस का प्रोबेबिलिटी मतलब सोशल लॉस, मतलब लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी, economic loss, loss of property and environmental degradation. So disaster risk is the probability of disaster. अगर risk high है तो मतलब disaster होने के chance ज्यादा है। Now disaster risk को समझने के लिए उसे हम 4 components में divide करते हैं, which is hazard, vulnerability, exposure and coping capacity. आज अभी हम सिर्फ हजार्ड के बारे में बात करेंगे, अगर टाइम परमिट करेगा we will talk about the rest of the 3 components, but हजार्ड के बारे में पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे रिप्रेजेंट्स होते हैं ये चारों। तो डिजास्टर रिस्क इज सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोपिंग कैपेसिटी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, दोनों को जो रिलेट करता है बीच में वो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो हजार्ड बढ़ेगा तो डिजास्टर रिस्क बढ़ेगा बाय मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी तो डिजास्टर रिस्क बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा तो डिजास्टर रिस्क बढ़ेगा, बट कोपिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो डिजास्टर रिस्क घटेगा। यहाँ पे वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन हजार्ड ओनली। तो व्हाट इज अ हजार्ड? The definition says a process, phenomena or a human activity that may cause loss of life, injury or other health impacts, property damage, social economic disruption. ये जो वर्ड रेड में है मे कॉज, उस पे हम लोग ध्यान दें। मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस या फिनोमिना या ह्यूमन एक्टिविटी जिसके कारण लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी, हेल्थ इंपैक्ट, प्रॉपर्टी डैमेज हो पाए उसे हम डिजास्टर कहते हैं। ध्यान दीजिए जो ग्रीन में लिखा हुआ है उसी को तो हम लोग डिजास्टर कहते थे। तो अ प्रोसेस, फिनोमिना, ह्यूमन एक्टिविटी दैट मे कॉज डिजास्टर, ये हजार्ड की डेफिनेशन होती है। अब इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से अगर किसी रिहायशी इलाके में, किसी सोसाइटी में एक पेट्रोल पंप आसपास है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस पेट्रोल पंप की वजह से आसपास की सोसाइटी को नुकसान पहुंच सके। अभी पहुंच नहीं रहा, बट देयर इज अ पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर पेट्रोल पंप की उसके कारण से डिजास्टर हो पाए। तो इस पर्टिकुलर केस में वो पेट्रोल पंप हजार्ड है। और ये कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे अगर आपने किसी रिहायशी इलाके में कहा जाता है कि आपको ये जैसे पेट्रोल पंप नहीं ले सकते, वैसे ट्रेन में कहा जाता है कि आपको आप क्रैकर्स नहीं ला सकते, जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्सप्लोजिव आप ले नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर पोटेंशियल हजार्ड्स, दे आर हजार्ड्स एंड दीज हजार्ड्स हैव अ पोटेंशियल टू कॉज डिजास्टर।
अब एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि अगर मैं कहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कह दिया कि नेचुरल डिजास्टर्स नहीं होते हैं, बट अगर उसको हम लोग समझने की कोशिश करें कि क्यों नहीं होते हैं, तो अगर मैं एग्जांपल पूछूं कि नेचुरल डिजास्टर्स के कुछ एग्जांपल्स बताइए, तो सामने से आप लोगों की तरफ से जवाब आएगा साइक्लोन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, दीज आर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स। यहाँ पे समझने की कोशिश है कि ये सारे इवेंट क्या डिजास्टर्स थे। मैंने पहले बताया राजकोट में जो अर्थक्वेक आया था, क्या उसे डिजास्टर बोला गया था? उसे नहीं बोला गया था। तो अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स, लाइटनिंग, दीज आर हजार्ड्स, ये डिजास्टर्स नहीं है। दे हैव द पोटेंशियल टू कॉज डिजास्टर, लेकिन इट डजंट मीन दैट एवरी टाइम दे अकर दे विल कॉज अ डिजास्टर। सो साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड्स, दे आर नॉट डिजास्टर्स, दे आर हजार्ड्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिजास्टर्स के एग्जांपल दो, तो यू कैन नॉट से साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड्स, दीज आर जेनरिक टर्म्स। लेकिन अगर आपको कहना है डिजास्टर, यू कैन से 2001 भुज अर्थक्वेक वाज अ डिजास्टर। 2019 में जो फोनी साइक्लोन आया था, दैट वाज अ डिजास्टर। 2013 में जो उत्तराखंड के फ्लड्स आया था, दैट वाज अ डिजास्टर। कोई एक पर्टिकुलर इवेंट डिजास्टर होता है, जेनरिक टर्म हम डिजास्टर्स के लिए यूज नहीं करते। सो वी से दैट साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड्स आर हजार्ड्स, दे आर नॉट डिजास्टर्स। डिजास्टर के लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को डिस्कस करना पड़ेगा। डिजास्टर का जो डेफिनेशन पड़ेगा, जो हमने पढ़ा था, उसमें कहा था इट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी। तो कोई कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट्स ही होते हैं जो कैपेसिटी के बियॉन्ड होते हैं। जो राजकोट का अर्थक्वेक आया, दैट वाज नॉट बियॉन्ड द कैपेसिटी, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डिजास्टर। 2001 का जो भुज अर्थक्वेक आया था, that was beyond our capacity, hence that will be called a disaster. So cyclone, earthquake, floods, they are hazards, they are not disasters. Disasters का definition देना है तो कोई एक particular event, 2001 भुज अर्थक्वेक was a disaster, 2019 का फोनी साइक्लोन was a disaster, 2013 का अर्थक्वेक, केदारनाथ का जो फ्लड्स आया था, that was a disaster. You cannot use generic term for disasters. अब हजार्ड्स दो तरीके के हो सकते हैं। हजार्ड्स कैन बी नेचुरल, इसमें साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक, और इट कैन बी एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड। इसमें आ जाएगा एक्सप्लोजन, इरोजन, और जो इंडस्ट्रीज की वजह से डिजास्टर्स होते हैं, वो मैन मेड डिजास्टर्स हो सकते हैं। सॉरी हजार्ड, सॉरी मैं भी कंफ्यूज। सो हजार्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैन मेड एंड नेचुरल, बट डिजास्टर्स मैंने कहा disasters are only man-made, there is no natural disaster. इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक let's assume एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसा टापू है जहाँ पे कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है, वहां पे कोई नहीं रहता। तो वहां पे अगर 9.1, 9.5 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आ जाए, या साइक्लोन या सुपर साइक्लोन भी आए, लेकिन कोई वहां पे नुकसान नहीं होगा। नुकसान तभी होगा जब वो पर्टिकुलर हजार्ड किसी ह्यूमन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आएगा। तो अगर साइक्लोन लोगों को नहीं मारता, अर्थक्वेक लोगों को नहीं मारता, लोगों को बिल्डिंग्स मारती हैं। बिल्डिंग्स जब अर्थक्वेक के ग्राउंड शेकिंग मोशन को नहीं झेल पाती हैं और ये टॉपल ओवर हो जाती हैं, उसके कारण लोग मरते हैं। तो अर्थक्वेक, साइक्लोन, दे आर हजार्ड्स, दे आर नॉट डिजास्टर। कोई एक पर्टिकुलर इवेंट ही डिजास्टर्स होते हैं, और वो इवेंट डिजास्टर तभी बनते हैं जब वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आते हैं। तो नेचुरल इवेंट, अर्थक्वेक हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले भी आता रहा है, अभी भी आता है, और हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के बाद भी आता है। इट्स जस्ट अ ह्यूमन नेचुरल फिनोमेना। ये हम हैं, हम ह्यूमन से हमें पता है कि हम जोन 5 अर्थक्वेक में रहते हैं, जोन 4 अर्थक्वेक में रहते हैं, हम उसके हिसाब से घर नहीं बनाते हैं, तो हमारी गलती है। हम फ्लड प्रोन एरिया में अगर हमें घर बनाना है तो हम एजुकेट मेजर्स नहीं लेते हैं, तो ये गलती हमारी है। हम वो जो मूवी आई थी OMG, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड कह के उन्होंने कह दिया था कि हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, तो वो सिनेरियो डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में ना हो, लोग अकाउंटेबल रहें। तो दैट्स व्हाई वी से दैट देयर इज ऑलवेज man-made disasters and there are no natural disaster. But इसमें डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि अगर आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, प्लीज स्टिक टू योर सिलेबस। So no natural disaster, keep calm and repeat, disasters are not natural.
डिजास्टर्स आर नॉट नेचुरल, हैशटैग नो नेचुरल डिजास्टर्स एंड आपत्ति कुदरती नहीं होती, दैट्स आवर गुड। दीज आर, जैसे मैंने पहले बताया कि काफी इवॉल्विंग फील्ड है ये, अभी इसमें कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, इसमें अभी ये कॉन्सेप्ट्स आया नो नेचुरल डिजास्टर, इसको किताबों में स्टूडेंट्स के सिलेबस में पहुंचने में अभी टाइम लगेगा, तो अभी ये इस पे एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं हुई है, बट ये हो जाएगी धीरे धीरे। सो डिजास्टर और हजार्ड के बीच में अगर हम अंतर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं। एटम बम इटसेल्फ वाजंट अ डिजास्टर, इट वाज ओनली व्हेन इट वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इट रेन्ड हैवॉक। एटम बम को डिजास्टर नहीं कहेंगे ना, इट वाज एन हजार्ड, उसके पास पोटेंशियल था कि इट कैन कॉज अ डिजास्टर, ओनली व्हेन इट वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी डिजास्टर हुआ। तो जब हजार्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आता है तभी डिजास्टर होता है। इस एग्जांपल से ये समझने की कोशिश की है हमने। तो जैसा मैंने बताया कि दो मेजर हजार्ड्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो पहला है अर्थक्वेक। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अ अर्थक्वेक हजार्ड मैप ऑफ गुजरात स्टेट। हमें पता है कि अर्थक्वेक को पूरे इंडिया को 4 अर्थक्वेक जोन में बांटा गया है, फ्रॉम जोन 2 टू जोन 5। जोन 5 मतलब होता है वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन होता है, एंड जोन 2 होता है लो डैमेज रिस्क जोन। पहले जोन 1 भी हुआ करता था, लेकिन जोन 1 और जोन 2 को क्लब करके सिर्फ जोन 2 कहा जाता है। तो अर्थक्वेक को समझने के लिए हमें फॉल्ट लाइन्स समझने की कोशिश करते हैं। फॉल्ट लाइन्स वो जगह होती है जहां पे देयर इज अ सडन चेंज इन द क्रस्ट, अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड हम एक पिक्चर देख रहे हैं जहां पे एक सडन चेंज हुआ है अर्थ क्रस्ट का, तो इन्हें हम लोग फॉल्ट लाइन्स कहते हैं। दीज आर द पोटेंशियल एरियाज जहां पे अर्थक्वेक इंसिडेंट्स हो सकते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कुछ आप रेड कलर की लाइंस देखते होंगे, दीज आर द फॉल्ट लाइंस एग्जिस्टिंग इन आवर स्टेट ऑफ गुजरात। सो ये जो फॉल्ट लाइन मैंने बताया था ये ऐसे काम करती हैं। सपोज दैट ये 2 पर्टिकुलर ऐसे लैंड मासेस हैं, उनके बीच में एक फॉल्ट लाइन है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्सेस ही होती हैं। दे आर सेपरेट एंटिटीज, 2 सेपरेट लैंड मासेस होते हैं, वो टिके रहते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। समटाइम्स क्या होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर जाते हैं and that land subsides down, and this leads to lots of release of energies। उसकी वजह से earthquake tremors आते हैं। तो earthquake क्या होते हैं, it's ground shaking which happens due to this movement of land masses, और उसे हम लोग टेक्निकल भाषा में प्लेट्स कहते हैं। तो this is some physiogeography of earthquake, जहाँ पे फॉल्ट लाइन पे देखा, फॉल्ट लाइन की वजह से यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ, उसे हम लोग हाइपोसेंटर और फोकस कहते हैं। और ये जो फोकस का जो ऊपरी सतह होता है ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो नियरेस्ट पार्ट होगा ऊपर अर्थ क्रस्ट पे, उसे हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। एंड सेकेंड थिंग ऑन द नेक्स्ट फिगर हम पढ़ते हैं कि ये अर्थक्वेक के इंसिडेंट सिर्फ लिथोस्फीयर में होते हैं, विच इज 200 जो किलोमीटर का रेंज में होता है उसी में ही होते हैं, उसके नीचे नहीं होता है। होता क्या है, जो अर्थक्वेक के बेस में जैसे ये फॉल्ट का मूवमेंट होता है, ये लैंडमास का मूवमेंट होता है फॉल्ट लाइंस पे, तो देयर इज ट्रिमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच ट्रेवल इन फॉर्म्स ऑफ वेव। ये जो वेव्स होते हैं इनकी वजह से ही ग्राउंड शेकिंग मोशन होता है। तो ये जैसे बताया कि ये अर्थ का अपने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया है, एंड कहीं पे ये हाइपोसेंटर है जहां पे मूवमेंट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। तो पहली वेव्स होती है वो बॉडी वेव्स होती है विच स्प्रेड्स इन, विच एनर्जी रिलीज होती है वो बॉडी वेव्स के फॉर्म में होती है, जो एंटायर अर्थ क्रस्ट में मूव करती है, और उसके बाद से सरफेस पे होती है, उसे सरफेस वेव्स कहते हैं। अभी कैसे बनती है, लेट्स से यहाँ पे ऑन द नेक्स्ट फिगर वी कैन से दैट यहाँ पे एक फोकस, यहाँ पे मूवमेंट हुआ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, तो बॉडी वेव्स विल बी रिलीज इन ऑल डायरेक्शन। जो बॉडी वेव्स हैं ये सारे पूरे अर्थ की बॉडी में मूव करेगी। कभी कभी ये बॉडी वेव्स इन रॉक्स, जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे रॉक्स पे हिट करेगी, तो दीज इन रॉक्स पे हिट करने के बाद ये सरफेस पे दूसरी तरीके की वेव्स निकलना शुरू होंगी, उन्हें हम सरफेस वेव्स कहते हैं। तो बॉडी वेव्स हुई, और फिर जब बॉडी वेव्स ये किसी अर्थ सरफेस पे, किसी रॉक या फिर ऐसे किसी स्ट्रक्चर पे हिट करेंगी, तो उनकी वजह से सरफेस वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी।
तो बॉडी वेव्स दो तरीके की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव, और सरफेस वेव्स एक ही होती है, हम सरफेस वेव कहते हैं। तो इन दोनों वेव्स के अराइवल टाइम अलग अलग होते हैं। सबसे पी वेव जो होती है, बॉडी वेव्स में दो तरीके की वेव्स होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स जो होती हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उससे थोड़ा धीरे एस वेव्स होती हैं, और उससे थोड़ा धीरे सरफेस वेव्स होती हैं। पी वेव्स का जो मोशन होता है इन जीआईएफ से हम देख सकते हैं, पी वेव जो होती है ये कंप्रेस करती रहती हैं, कंप्रेसिबल, इन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहते हैं। और एस वेव क्या होते हैं, ये सरफेस के परपेंडिकुलर मूव करती है। तो पी वेव की वजह से कोई नुकसान नहीं होता है, एस वेव की वजह से नुकसान होता है, क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होता है। और इसके बाद आते हैं सरफेस वेव। जो सबसे ज्यादा नुकसान जो अर्थक्वेक की वजह से होता है वो सरफेस वेव की वजह से होता है। तो पी वेव में से ज्यादा नुकसान नहीं होता है, एस वेव की वजह से थोड़ा नुकसान होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो सरफेस वेव की वजह से होता है। तो लेट्स से जहाँ पे 8 लिखा हुआ है वहां पे एक सरफेस वेव ओरिजिनेट होना शुरू हुई, देन इट ट्राइज टू स्प्रेड ऑन द सरफेस, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है जैसे इसी सरफेस वेव्स की वजह से। तो पी वेव्स अराइवल टाइम्स हैं, सबसे पहले पी वेव्स आती हैं, उनके बाद एस वेव्स आती हैं, सबसे बाद में सरफेस वेव्स आती हैं। ये जो टाइम डिफरेंस होता है इन पर्टिकुलर वेव्स में, ये हेल्प करता है हमें अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की कोशिश में, सिस्टम में। ये अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की कोशिश में। तो अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के बेसिक्स क्या होते हैं कि पी वेव्स पहले आ रही हैं, तो पी वेव्स की वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। पी वेव्स में आप उसे पहचानिए, आपको पता चल जाएगा कि आगे एस वेव और सरफेस वेव आने वाली है, तो यू कैन इश्यू द वार्निंग। तो यही होता है इस केस में। जो पी वेव्स की जो स्पीड होती है वो 3.5 माइल्स पर सेकेंड होती है। ये पी वेव्स को हम लोग पहले कैप्चर कर लेते हैं, जान जाते हैं। और जो एस वेव्स जो होती है, जो डैमेजिंग वेव्स होती है, उसकी स्पीड 2.0 मील पर सेकेंड होती है। तो ये जो वेव्स होती हैं ये बाद में आती हैं। तो हम लोग पहले पी वेव्स को पकड़ लेते हैं, पी वेव्स को जान जाते हैं कि आगे अर्थक्वेक आने वाला है, अकॉर्डिंगली हम लोग अर्ली वार्निंग दे देते हैं। बट ये जो अर्ली वार्निंग आती है इसमें आप डिफरेंस देख रहे हैं, स्पीड का डिफरेंस 1.5 माइल पर सेकंड का है, तो हमें मार्जिन अराउंड 90 सेकंड्स टू 120 सेकंड से मिलता है। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं, बट जो हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, लेट्स से न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, या फिर उन्हें हम लोग बंद कर सकते हैं, मेट्रो जो गाड़ियां चल रही हैं, रेल चल रही हैं, उन्हें रोक सकते हैं, एयरप्लेन पे सिग्नल्स जा सकते हैं कि आप अभी लैंड मत करिए, अभी अर्थक्वेक के इंसिडेंट्स हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर डिजाइन। सो लास्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो होंगे साइक्लोन्स के बारे में। सेकेंड थिंग, तो आप 3 वर्ड्स सुनते होंगे, साइक्लोन्स, हरिकेन्स एंड टाइफून्स। इन सबका मतलब सेम होता है, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। इंडियन ओशन में होती हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास होती है, उसे हम लोग साइक्लोन्स कहते हैं। ये वेस्ट पैसिफिक में होती हैं, अराउंड जापान एंड फिलीपींस, उसे टाइफून कहते हैं। अगर अटलांटिक ओशन में होती है अराउंड यूएस, उसे हम लोग हरिकेन्स कहते हैं। ये 3 टर्म्स का मतलब सेम होता है, ओनली डिफरेंस इज द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिनेशन। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये एक मेट्रोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं जिनका रेडियस 50 to 100 किलोमीटर हो सकता है। ये जो सेंटर में होता है वो लो प्रेशर होता है, एंड वी मूव आउट तो प्रेशर इंक्रीजेस। तो एंड द रोटेशन ऑफ विंड्स इज एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स। ऐसे ये मूवमेंट होता है। एंड देन एक और टर्म्स आता है टोर्नेडो। टोर्नेडो इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम साइक्लोन्स। जो साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून, जो तीनों एक ही चीज होती हैं, दे ओरिजिनेट ऑन सीज और वाटर बॉडीज, मतलब सीज एंड ओशन, वहां से वो लैंड की तरफ मूव करते हैं। टोर्नेडो होता है ये सिर्फ लैंड पे ही बनता है और लैंड पे ही डिसिमिनेट हो जाता है। उसमें जो साइक्लोन या हरिकेन्स का जो डायमीटर होता है वो अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास होता है, बट जो लार्जेस्ट एवर टोर्नेडो होता है वो 4 किलोमीटर होता है, एंड जनरली 0.8 किलोमीटर वाइड होते हैं। बट इसमें जो विंड स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू साइक्लोन्स। तो अब साइक्लोन कैटेगराइजेशन में इंडिया में हम लोग साइक्लोन को कैटेगराइज करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज की हैं। अगर विंड स्पीड 13 किलोमीटर से कम है तो उसे हम लोग लो प्रेशर एरिया कहेंगे। 31 to 49 है डिप्रेशन कहेंगे। देन डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो अभी जो निसर्ग साइक्लोन आया था दैट वाज साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो अभी
अम्फन साइक्लोन आया था, दैट वाज सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और जो अभी ताउते आया था वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये होते हैं ऐसे। यहाँ पे लेट्स से ये हम लोग बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ऐसे ओरिजिनेट करते हैं, यहाँ पे डिप्रेशन बनता है, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म। जैसे जैसे वो वाटर से वो अपनी स्ट्रेंथ लेता है, जैसे जैसे वाटर वेपर से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। जब वो लैंडफॉल करता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ लैंड सरफेस वो उसकी स्पीड घटते जाती है एंड फाइनली वो उसकी स्ट्रेंथ डिसिपेट होती जाती है। जैसे यहाँ पे एक्सट्रीमली के बाद वो वेरी सीवियर, सुपर ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड फाइनली डिसिमिनेटेड इनटू अ लो प्रेशर एरिया। एंड दिस इज हाउ साइक्लोन्स आर नेम। जो जितने भी कंट्रीज जिनको इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वार्निंग्स देता है, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, दे हैव गिवन सर्टेन नेम्स, कुछ नेम्स दिए रखे हैं यहाँ पे 13 कॉलम है, तो एक एक करके सबका नाम दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ पे शाहीन आया था, फिर जवाद आया था। नाउ जो अभी पता नहीं ये आसानी नाम आगे आएगा, सतरंग जो नाम है ये आगे नाम आएगा साइक्लोन्स का। तो इंडिया में साइक्लोन्स के 2 सीजन होते हैं, मानसून से पहले जिसे हम लोग एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, मई टू जून, और रिट्रीटिंग मानसून होता है सितंबर टू नवंबर। तो मानसून के पहले और मानसून के बाद में होता है। मानसून के समय साइक्लोन्स नहीं होते हैं क्योंकि साइक्लोन्स एक बहुत छोटे सिस्टम्स होते हैं, और मानसून जब आता है तो मानसून जो साइक्लोन्स की जो फॉर्मेशन होता है दैट इज वर्टिकल, और जो मानसून विंड्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो विंड्स होती हैं वो साइक्लोनिक सिस्टम को बनने नहीं देती हैं। इस कारण से मानसून के समय में साइक्लोन्स नहीं होते हैं, मानसून के पहले साइक्लोन होते हैं, मानसून के बाद साइक्लोन्स होते हैं। और जनरली ये कहा जाता था कि हमारे जो बे ऑफ बंगाल है उसमें साइक्लोनिक एक्टिविटीज कम होती हैं कंपेयरिंग टू द बे ऑफ बंगाल एक्टिविटी, लेकिन 2019 में ऐसा पाया गया कि ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल में सिर्फ 3 मेजर साइक्लोन आए, जबकि हमारे वेस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में 5 मेजर साइक्लोन आए। इसका रीजन क्लाइमेट इमरजेंसी कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे यहाँ अरेबियन सी में अब ज्यादा साइक्लोन्स आने लगे हैं, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और इंटेंसिटी भी बढ़ गई। कुछ साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं इसके पीछे, जिसमें ये ताउते आया था तो ये काफी स्टडीज हाईलाइट हुई थी। ये स्टडीज हुई, इसमें कहा गया था कि 1982 से 2000 के बीच में देख सकते हैं जो डॉट्स हैं वो साइक्लोन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट केस में जो 1982 से 2000 के बीच में है साइक्लोन्स के नंबर कम है, लेकिन 2001 से 2019 के बीच में साइक्लोन्स के इंसिडेंट बढ़ गए। तो अरेबियन सी में देयर हैज बीन 52% इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइक्लोन्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड 150% इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीवियर साइक्लोन। मतलब साइक्लोन के नंबर तो बढ़े हैं, लेकिन जो हाई इंटेंसिटी साइक्लोन है उनके नंबर 150% बढ़े हैं। सो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है साइक्लोन्स की एंड फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। और फिर कुछ तरीके, आई थिंक आई एम गेटिंग टाइम से ज्यादा जा रहा हूँ, तो ये कुछ तरीके जिससे साइक्लोन वल्नरेबिलिटी को नापा गया है। उसमें P1, P2, P3, P4, ये राइट हैंड साइड में ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। इसमें कुछ हमारे जो गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे डिवाइड किया गया है इन टर्म्स ऑफ साइक्लोन वल्नरेबिलिटी। कुछ BMPTC हैं, उन्होंने हजार्ड मैप्स, साइक्लोन हजार्ड मैप भी रिलीज किए थे। तो विंड हजार्ड मैप है 2015 में, 2019 में, ये 2 तरीके के मैप उन्होंने रिलीज किए थे। और ये गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी साइक्लोन हजार्ड डेफिनेशन किया था। उसके हिसाब से ये 100 ईयर्स रिटर्न पीरियड के साइक्लोन है। और कुछ डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने ऐसी रिपोर्ट बनाई हुई है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन अफेक्टिंग द गुजरात स्टेट। तो यू कैन विजिट आवर पोर्टल एंड इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज फ्रॉम एक चीज ये मैं बता देता हूँ कि ये आप ये पूरे दुनिया को 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में बांटा गया है जो उस पर्टिकुलर मेंबर कंट्रीज को वार्निंग देते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं RSMC न्यू दिल्ली, ये जो ब्लॉक बने हुए इनमें जितनी भी कंट्रीज आएंगी, ओमान आ गया, बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया, म्यांमार आ गया, श्रीलंका आ गया, इन सबको वार्निंग साइक्लोन वार्निंग देने की जिम्मेदारी RSMC न्यू दिल्ली की है, जो कि IMD में सिचुएटेड है। एंड दिस इज IMD की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये सारे उनके पिक्चोरियली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगे जो कि एक लाइव स्ट्रीम दिखाते हैं कि किसी साइक्लोन के केस में। एंड ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। I would like to thank Mr. Ankush Srivastava for presenting such a wonderful and enlightening session to the students. Not only for providing an overview,
for providing an holistic approach, not to scientific term of disaster, but to the paradigm shift occurring in the economical sector and the social sector as well, and to more focus on rather being reactive on just rehab and reconstruction part, but to having positive and proactive approach towards the preparedness. So I would very humbly thanks Mr. Ankur sir for sharing and providing us with your valuable time. I'll request Dr. Anjali Thakur, section head, and the other students if they want to ask some questions to sir. Sir, there are few questions in the chat box. Yes, Juhi ma'am, thank you for coordinating such a beautiful webinar. Thank you, Ankur sir, for delivering your precious knowledge to my students. Sorry, I couldn't be there in the whole session as I was having some priorities. Thank you so much for accepting our webinar request and imparting students such a valuable knowledge. Yes, there are some questions where students like to ask you. So I will now forward this thing to the students. So students, please, if you have some query, you can directly ask to sir. Thank you, sir. So we are having some questions in the chat box. I'll Yes, just yes. read out if you can answer some of them. Yes. The students are asking that how can we differentiate between disaster and pandemic with respect to COVID-19? Okay, okay. So COVID-19 पैंडेमिक जो टर्म्स होते हैं, जो एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड दीज आर द टर्म्स, ये स्केल बताते हैं कि कहाँ पे कितना स्ट्रेच हो गया है उसका इफेक्ट किस COVID-19 का. When we say COVID-19 is a pandemic, it means that the effect of COVID-19 is not felt within a country, but उसका जो स्केल है, it has reached to multiple countries. In present case, the entire world is exposed to coronavirus. So in the pan world, it means the word pan means it has covered entire earth, all the countries residing on the earth surface. So pandemic means कि ये एक country तक limited नहीं है, वो हर जगह फैला हुआ है. And जैसा मैंने एक notification दिखाया था कि I said that government of India and the state government and district collector वो अलग-अलग levels पे decide करते हैं कि कोई event disaster है कि नहीं disaster है. तो कोविड-19 को 14 मार्च 2020 को एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया गया था कि कोविड-19 इज अ डिजास्टर, एंड उसको डिजास्टर डिक्लेयर करने के बाद ये कह दिया गया था कि पीपल हु आर जिनके नुकसान होता है इस पर्टिकुलर कोविड-19 से, दे विल बी एक्यूरेटली कंपनसेटेड. और उसके बाद से जो जीआर है उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया. तो यस, द पैंडेमिक का मतलब दूसरा होता है एंड डिजास्टर का मतलब दूसरा होता है. पैंडेमिक में उसका एक्सटेंड बताता है, डिजास्टर का मतलब ये होता है कि उसमें आपको असिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. Thank you for such a wonderful answer. Another question is, if there is a loss of death or damage done due to falling of asteroid, then will it be considered as hazard or a disaster? Like I said, in India, we don't give a number, a numerical number to the loss. जो डिजास्टर को लॉस कहते नहीं है. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वेस्ट में, एक कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं, CRED आप सर्च कर सकते हैं, उसमें उन्होंने एक नंबर दे दिया. बट इन इंडिया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है एंड जो हमारा एक्सटेंट इतना ज्यादा है, वी कैन नॉट असाइन अ नंबर. इट्स ओनली थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड द पीपल on a particular levels, that's on national level, state level and district level पे कलेक्टर होते हैं. If they feel कि जो नुकसान हुआ है it is of such a magnitude कि उसमें हमें assistance देना है, तो उसे हम लोग डिजास्टर कहेंगे. तो इन केस ऑफ एस्ट्रॉइड, अगर वो गिरता है, उसकी वजह से नुकसान होता है, एंड द रिलेवेंट अथॉरिटीज दे फील दैट दिस शुड बी, द पीपल शुड बी कंपनसेटेड, तो दे विल डिक्लेयर इज अ डिजास्टर. मैं एग्जांपल लूंगा. एक बार स्टैम्पीड हुआ था मध्य प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 12 लोगों की जान गई थी. ऐसे देखा जाए तो इंडिया लेवल पे ये काफी छोटा नंबर है, बट उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लगा कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट डिजास्टर होना चाहिए, तो उसने डिजास्टर घोषित किया. एंड द पीपल जिनकी मौत हुई थी, दे वर एक्यूरेटली, उनके जो किन्स थे उन्हें दे वर एक्यूरेटली, दे वर कंपेंसेटेड. तो यस, इफ देयर वुड बी एस्ट्रॉइड गिरने से अगर कोई डैमेज होता है एंड द responsible authorities they feel people should be compensated, they will declare that event to be a disaster. Thank you, sir. I suppose we are exceeding our time limit. So if any of the students have question, can provide it to me and I'll share it with sir. Sure, And sure. I would like to thank Ankur sir for providing us their valuable time.
and to enlighten students. And I'll also thank Dr. Anjali Thakur for providing us opportunity to conduct this training program today. And we look forward to have such more collaborations with GIDM and Parul University. Thank you so much, sir. Okay, thank you so much, madam. Thank you. If any of you have any doubt, you can tell it or share it to me and I can, forward it to Ankur, sir. For now, we are done with the webinar and thank you for joining the session.